بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اچھی خبر ہے، سابق کرکٹر شعیب اختر اور سرکاری ٹی وی کی میزبان ڈاکٹر نعمان نیاز کے درمیان تلخ کلامی کا معاملہ حل ہو گیا۔ نعمان نیاز نے اسٹار کرکٹر سے غیر مشروط معافی مانگ لی۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے دونوں کو گھر بلا کر ان کی صلح کروائی۔ عباس شبیر رپورٹ کریں گے۔ شعیب اختر کے ساتھ سرکاری ٹی وی پر میزبان کی بدسلوکی کے ناخوشگوار واقعے کا خوشگوار اختتام ہوا۔ شعیب اختر I am extremely sorry for whatever happened on screen. وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس کا ریزن یہ ہے 30 سال کی یاری ہے یار، that shouldn't go down. معافی قبول کرتے ہوئے راولپنڈی ایکسپریس نے بھی رنجش کے معاملے کو یہیں بریک لگا دی۔ بس ٹھیک ہے، you should have said it long time ago. No جی، it's never too late. شعیب اختر نے ٹویٹر پیغام میں لکھا، نعمان نیاز کی معافی قبول کر رہا ہوں، آئیے اب اس سے آگے بڑھے۔ یہ صلح ہوئی وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کے گھر، جنہوں نے دونوں کے ساتھ لی گئی تصویر بھی لالا مادھو رام جوہر کے شعر کے ساتھ ٹویٹ کر دی۔ دوست دو چار نکلتے ہیں کہیں لاکھوں میں، جتنے ہوتے ہیں سوا اتنے ہی کم ہوتے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے یہ بھی لکھا کہ بات اتنی بڑی نہیں تھی جتنی سوشل میڈیا نے بنا دی، اختتام اچھا تو سب اچھا۔ اس معاملے پر پی ٹی وی کی انکوائری کمیٹی کے 2 اجلاس بھی ہوئے تھے۔ ڈاکٹر نعمان نیاز کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے انہیں معطل کر دیا گیا تھا۔ پی ٹی وی انتظامیہ نے ایک اور معاملے میں شعیب اختر کو 10 کروڑ روپے ہرجانے کا نوٹس بھی بھجوا رکھا ہے۔ اور اب یہ سوال کہ کیا گیم آن ہے اور شعیب اور نعمان نیاز پھر سے ایک ساتھ نظر آئیں گے؟ سما کے سوال پر ڈاکٹر نعمان نیاز نے کہا کہ یہ پی ٹی وی کا فیصلہ ہوگا، پچھلی باتوں کو پکڑ کر بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سما کے نمائندے عباس شبیر نے ان سے بات چیت کی ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ ڈائریکٹر اسپورٹس ڈاکٹر نعمان نیاز اور شعیب اختر کے درمیان صلح ہو گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اپنے گھر دونوں کو بلایا اور گلے ملوایا۔ ڈاکٹر نعمان نیاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار گیونگ دا ٹائم۔ Always a pleasure. خوش رہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیسا محسوس کر رہے ہیں اس کے بعد، اس سارے ایپیسوڈ کے بعد؟ Obviously تشنگی تھی، اچھا احساس نہیں تھا، کیونکہ ایک طرف دوستی تھی اور ایک طرف ایسا ایک مطلب انسیڈنٹ بھی ہوا، واقعہ ہوا، تو میرے خیال میں اب ایک سکون ہے اور ایٹ لیسٹ کہ دونوں اینڈ سے یہ ایک ریئلائزیشن ہے اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سوشل میڈیا پر ایک پہاڑ ٹوٹا آپ کے خلاف، سوشل میڈیا پہ یہ اس واقعے کو بہت زیادہ آپ کے اگینسٹ یوز کیا جی، تو کیسا اس وقت آپ کو کیا فیل ہوتا ہے؟ مجھے اپنے پہ کچھ نہیں تھا، کیونکہ میں تو وہ کہتے ہیں نا آئی واز ان دا سینٹر آف دا اسٹارم، تو مجھے لیکن جس طرح میرے 87 سال کے والد کے متعلق کلمات ادا کیے گئے اور جس کا سچ سے اور حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور جس طرح بیٹی کی تصویر میری فیس بک سے اٹھا کے اس کو تشہیر کی گئی، وہ اچھے معاشرے کی عکاسی نہیں کرتا۔ چودھری کے گھر گلے ملے ہیں، گیم آن میں دوبارہ آپ اور شعیب اختر نظر آ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں آ سکتے؟ جب صلح ہی ہو گئی۔ اور ایک اور چیز کلیئر کر دوں عباس کہ پروفیشنل خلش اور ہوتی ہے، دوستی یاری ریلیشن شپ اور ہوتا ہے۔ 30 سال کا ناتا ہے، 30 سال کی دوستی ہے، اور اس میں کون سی کوئی قدرتیں ہیں کہ جی ہم بیٹھ نہیں سکتے؟ ضرور بیٹھ سکتے ہیں، بٹ ڈیسیجن تو مینجمنٹ کا ہوگا نا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی مینجمنٹ، منسٹر صاحب وین ایور دے ول ڈیسائڈ، جو کہیں گے وہ کریں گے۔ پچھلی یادوں کو پکڑ کے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، زندگی جو ہے وہ گزرتی ہے اور آگے چلنا چاہیے اور پچھلی چیزیں بھول جانی چاہیے۔ وی ہیو بین گریٹ فرینڈس۔ ان کی والدہ نے بھی میرے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے، میری والدہ نے بھی اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے، سو دس شوڈ ایمرج ایز اے فرینڈشپ اور ختم، آگے چلنا ہے۔ شعیب کو جتنا میں جانتا ہوں دل کا، وہ بھی بالکل بھی برا آدمی نہیں ہے، میرا بھی دل صاف ہے اور مجھے پوری امید ہے اس کا بھی دل صاف ہوگا، اور یہ سیلفی یا یہ آپٹکس نہیں ہوں گے، یہ ریئلی ایک ریلیشن شپ دوبارہ فلرش کرے گا۔ اگر 30 سال میں آپ کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایک دفعہ ہوا ہے؟ بڑے نشیب و فراز آئے، بڑے اچھے ٹائم ہم لوگوں نے اکٹھے گزارے، بڑے برے ٹائم گزرے، لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، یہ کیونکہ پرومیننٹ ہو گیا، اسکرین پہ ہو گیا تو یہ ایک نیوز آف دا ڈے بن گیا۔ ورنہ جس طرح آپ کے ریلیشن شپ آپ کے دوستوں کے ساتھ ہوں گے، اسی طرح ہمارا ریلیشن شپ ہے۔ ایک ذرا سافٹ سا کہ گلے شکوے ہوئے، کھانے کے اوپر کبھی اکٹھے ہوں گے دوبارہ، گیٹ ٹوگیدر کب ہوگی؟ شعیب کے گھر میں مچھی بڑی اچھی ملتی ہے اور وہ میں مس کر رہا ہوں بڑے دنوں سے۔ اب مجھے ایک میسج بھی کرنا پڑے گا، پاجی مچھی تو منگوا دو، لاڈ بار بچ لینا، مچھی تو کھانی ہے۔ آپ ادھر سے ہی شعیب بھائی کو میسج کر دیں، مچھی سر میں کھانی ہے، شاید بھائی کوئی بتا دینا، مچھلی اچھی ہوتی ہے بہت۔
बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अपोजिशन ने हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे शुरू करने में बहुत देर कर दी। बोले जब पहली मरतबा फजल रहमान इस्लामाबाद आए थे वो धरनों का बेहतरीन वक्त था। वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि TLP के साथ होने वाले मुआहदे में वो शामिल नहीं थे। हुकूमत के सामने महंगाई का खात्मा वाहिद मसला है। जलसे जुलूस करना ये अपोजिशन का हक है। मुझे उनसे गिला कि बड़ी देर से शुरू किया आपने। 3.5 साल तो हमारी हुकूमत को हो गए हैं, अभी वो वार्म अप होते होते ही 6 महीने लेंगे। असल धरना देने का या तहरीक चलाने का वो टाइम था जब पहली दफा फजल रहमान इस्लामाबाद आए थे। अब तो ऐसे ही अपने आप को भी ख्वार करेंगे, कोई खतरा नहीं। अब तो ये इलेक्शन मुहिम है, कोई आंखें नहीं दिखाता। देखें जब भी कोई इशू आता है लोग अपने मुतालबे मनवाने के लिए कुछ न कुछ डिमांड करते हैं। मेरी सियासी जमात इमरान खान के साथ है। 70 से धांधली के इल्जामात लग रहे हैं। मैं इमरान खान की सोच का हामी हूँ कि EVM मशीन होनी चाहिए। इंटरनेशनल वोटिंग के लिए बातचीत कर लें, उसका बैलेट कर लें, कोई हर्ज नहीं है। TLP से एक मुआहदा तय हो गया है, इस मुआहदे में मैं शामिल नहीं था। जो भी उनके मामलात तय हुए हैं उम्मीद है हफ्ता 10 दिन तक सामने आ जाएंगे और अच्छे होंगे। TTP के साथ मुज़ाकरात फॉरेन ऑफिस इस पे बेहतर तबसरा कर सकते हैं। शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद वो पहले भी ECL पे हैं, उन्होंने ECL से निकलने की दरखास्त नहीं दी। ये एक और केस नैब ने 15-20 दिन पहले भेजा था। खबर आप तक जरा देर पहुंची है। सारी हुकूमत को मालूम है कि हमारा एक ही मसला है, वो है महंगाई, इसको खत्म करना। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं पार्लियामेंट में अपनी कुव्वत का मुजाहरा करेंगे। लॉन्ग मार्च बहुत दूर है, इससे पहले ही काम हो जाएगा। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि हुकूमत ने कानून साजी पर बहस के लिए हमें नया लेटर लिखकर दावत दी है, हम जरूर बात करेंगे और जो बिल मुश्तरका इजलास से बाहर हैं वो भी इसमें लाएंगे। एक अहद किया है कि हम पार्लियामेंट में अपना जो स्ट्रेंथ है उसको मजबूती के साथ सामने रखेंगे। लेकिन लॉन्ग मार्च बहुत दूर है, अल्लाह करेगा पहले ही काम हो जाए। अभी उन लोगों ने एक नया लेटर लिखा है और हमें दावत दी है कि आप आके हमसे बात करें। हम उनसे ज़रूर बात करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम पार्लियामेंट के खातिर जो भी मसला होगा, जो मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक जो लेजिस्लेशन होगी उससे हम ज़रूर बात करेंगे। और जो बिल बाहर पड़े हैं, जॉइंट सेशन से बाहर है, उनको भी इसमें ला के सारी लेजिस्लेशन में बात करना चाहते हैं। हम बिल्कुल इस बात पे यकीन नहीं रखते कि हम खामखा का मसला पैदा करें। PDM अवाम की जंग लड़ रही है। हुकूमत को नहीं पता कि मुल्क कैसे चलाते हैं। PDM सरबराह फजल रहमान ने एक बार फिर हुकूमत को निशाने पर ले लिया। कराची में PDM के मुजाहरे से खिताब करते हुए कहा हुकूमती नुमाइंदों ने इक़्तिदार में आने से पहले कई वादे किए लेकिन कोई वादा पूरा न हुआ। इस वक्त PDM पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रही है, मुल्क की बका की जंग लड़ रही है और इंशाअल्लाह अज़ीज इस जंग में हम जीतेंगे। पाकिस्तान में अवाम की हकीकी नुमाइंदा हुकूमत आएगी और वो अवाम के मसाइल को समझेगी। जो हवा में उड़कर आए और इक़्तिदार पर मुसल्लत हुए उन्हें पब्लिक का कुछ पता नहीं है। उनके सामने एक तख़य्युलाती दुनिया बनाई गई। जो कुछ इन हुक्मरानों ने इक़्तिदार से पहले कहा था जरा उनको भी सुने और आज के उनके किरदार को भी सुने, जिनको पता ही नहीं मुल्क कैसे चलाए जाते हैं। बोलना नहीं था, पढ़ना था। महमूद खान अचकजई ने कराची जलसे में मिलने वाली पर्ची माइक में पढ़कर सबको सुना दी। मौलाना फजल रहमान समेत सारे रहनुमा हंस पड़े। पर्ची पढ़ते ही महमूद खान अचकजई ने सलाम करके डाइस छोड़ दी। पर्ची में आखिर लिखा क्या था ये आपको सुनवाते हैं। को ना छोड़ना बहुत बड़ी बर्बादी है। जी अजान का वक्त होने वाला है, लाइट का बंदोबस्त नहीं, मेहरबानी फरमाकर मुख्तसर करें, बड़ी मेहरबानी। अजान का वक्त होने वाला है, लाइट का बंदोबस्त नहीं, मेहरबानी फरमाकर मुख्तसर करें, बड़ी मेहरबानी। दूसरी जानिब वफाकी वजीर मुराद सईद की PDM पर कड़ी तनकीद। कहा यह मौसमी बीमारी है जो सर्दियों में निकलती है। इन्हें अवाम ने जलसों में मुस्तरद किया, इलेक्शन में भी मुस्तरद कर चुके हैं। करक जलसे से खिताब में कहा आइंदा करक से सिंध तक इलेक्शन PTI जीतेगी।
जो मिक्स अचार पार्टियां हैं उनको एक पैगाम देना चाहता हूं। आप रोज टीवी के ऊपर एक सर्कस देखते हैं। ये तमाम नाअहल, करप्ट, चोर, मुस्तरद शुदा टोला तारीख पे तारीख देता है। ये हुकूमत जा रही है, हम सड़कों पे आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं और मीडिया कहते हैं। अवाम उनको मुस्तरद जलसों में भी करते हैं, इलेक्शन में भी करते हैं, लेकिन एक तमाशा लगा होता है। और अब तो एक और चीज सामने आ गई कि ये मौसमी बीमारी है, सिर्फ सर्दियों के महीनों में ये आती है, निकलती है सड़कों पे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वज़ीर आज़म के करीबी साथी जुल्फी बुखारी कहते हैं इन हाउस तब्दीली की बातें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। इमरान खान के बगैर PTI चल ही नहीं सकती। बोले ब्यूरोक्रेसी वजारत समंदर पार पाकिस्तानी के कामों में रुकावट बनी हुई है। जुल्फी बुखारी ने अपोजिशन को हर 6 माह बाद बाहर निकलने वाली चूंटियां करार दे दिया। बोले मुतज़ाद नजरियात रखने वाले बिलावल और फजल रहमान का मिल बैठ कर करप्शन बचाने की कोशिश है। खान साहब को हटा के कौन सी PTI चल सकती है? मतलब नामंजूर है, पूरे PTI को नामंजूर है। वो ओवरसीज मिनिस्ट्री में काम तो रुके हुए हैं, वो वापस अपने ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के अंदर चले गए हैं। तो ओवरसीज के साथ क्या हाल हुआ है? वसीम खान से लेके जुल्फी बुखारी क्या नतीजा उनको मिला है? रिंग रोड की जितनी बकवास किस्म की इंक्वायरी और फिर मेरा डॉक्टर तौकीर शाह के साथ लिंक करना, फिर मेन इंक्वायरी में डॉक्टर तौकीर शाह का नाम ही ना आए। पहले तो मुझे उनके साथ लिंक किया ना कि जैसे कि वो गिल्टी हैं, वो भी गिल्टी ना आए तो फिर मेरा क्या लेना देना। हर मौसम की तरह चूंटियां बाहर आ जाती हैं हर 6-12 महीने बाद। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सियासत में भी यही है कि हर 12 महीने बाद आपको स्प्रे मारना पड़ता है। बिलावल जो बिल्कुल लेफ्ट विंग बनता है वो बिल्कुल राइट विंग के साथ मिल जाता है। किसी न किसी तरीके से लोगों के दिमागों में डालें कि अनसर्टिनिटी आ रही है, हुकूमत जा रही है। इनका बस एक यही खेल है। बिलावल अपने वालिद और अपनी वालदा की करप्शन बचाने के चक्कर में, फजल रहमान वो बेसिकली अनएम्प्लॉयड हुआ है पहली दफा जिंदगी में। मरियम बेचारी कोशिश कर रही है कि नवाज शरीफ को वापस तगड़ा करे और वो जब भी बाहर आती है अपने वालिद की सियासत को डेंट ही कर देती है। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद बड़ी पेशरफ्त। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने चेयरमैन नैब को खत लिखकर पूछ लिया कि बताएं कौन कौन सा केस वापस लेना है ताकि अदालती वक्त सिर्फ बाकी केसेस को ही दिया जा सके। सुहेल रशीद रिपोर्ट करेंगे। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत रिलीफ की दरखास्तों पर दरखास्तें आने लगी। एहतसाब अदालत के मुंतजिम जज मोहम्मद बशीर ने चेयरमैन नैब को खत लिखकर राय मांग ली। लिखा मुल्जिमान बरियत मांग रहे हैं, आपको प्रोसिक्यूटर जनरल की मुशावरत से मुकदमात वापस लेने का इख्तियार मिल चुका। आप ही फहरिस्त भेज दें कौन कौन सा केस वापस लेना है, किस केस को मुकम्मल बंद और किसे जुज़वी तौर पर खत्म करना है। खत में तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुतल्लिका पैराग्राफ दोहराते हुए कहा गया है कि अब इस कानून में कोई इबाम नहीं, लिहाजा खत्म होने वाले मुकदमात की फहरिस्त जल्दी भेजी जाए ताकि अदालत अपना वक्त इन्हीं केसेस को दे जिन्हें अब भी कानून के मुताबिक जारी रहना है। तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत एहतसाब अदालत में दर्जनों बरियत की दरखास्तें दायर की जा चुकी हैं। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने तौकीर सादी को गैर कानूनी तौर पर चेयरमैन ओगरा तैनात करने के नैब रेफरेंस में भी तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बरियत की दरखास्त दायर कर दी। कहा अब इस केस को चलाना एक ला हासिल मशक होगी। आसिफ जरदारी ने भी 4 मुकदमात में बरियत की दरखास्त दे रखी है, जबकि LNG रेफरेंस में 11 मुल्जिमान ने नैब का दायरा इख्तियार चैलेंज कर रखा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ जिसमें जनूबी बलूचिस्तान तरक्याती पैकेज पर पेशरफ का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने तरक्याती मंसूबों पर काम तेज करने के लिए एपेक्स कमेटी का इजलास हर माह बुलाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म का कहना है 665 अरब के 200 तरक्याती मंसूबों की जल्द तकमील के लिए हर 15 दिन में एग्जीक्यूशन कमेटी का इजलास मुनक्किद किया जाए। उन्होंने हिदायत की कि तुर्बत एयरपोर्ट जल्द मुकम्मल, गवादर और तुर्बत में 2 नर्सिंग कॉलेजेस जल्द तामीर किए जाएँ। अब आपको ये बताएं कि मेयर कराची के लिए मसला इख्तियारात का नहीं नीयत का था, इख्तियारात का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं हुआ। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं साबिक मेयर अपनी नाअहली का मलबा दूसरों पर डालते थे। मुर्तज़ा वहाब ने यह भी बताया कि कराची के लिए 240 बसें फरवरी में आ जाएंगी। इशू कभी भी इख्तियारात का नहीं था, नीयत का था। इख्तियारात को दुरुस्त सिमत में कभी इस्तेमाल नहीं किया। कभी भी कराची के मेयर ने एज फादर ऑफ द सिटी अपनी इनपुट लेने की कोशिश नहीं की। चूँकि माजी के मेयर की वो नीयत नहीं थी, वो नहीं चाहते थे कि चीज़ें बेहतर हों, वो अपनी नाअहली को छुपाने के लिए अपनी नाअहली का मलबा
दूसरों के ऊपर डालते थे। 250 नई बसें कराची शहर में लाई जा रही हैं, 240 कराची के लिए और 10 बसें लाड़काना के लिए। पहली ट्रांच 50 बसेस की इंशाअल्लाह 31 जनवरी से लेकर 7 फरवरी के बीच में इंशाअल्लाह कराची शहर में आ जाएंगी। केएमसी जो अपनी बसेस थी जो बंद पड़ी हुई थी केएमसी की अपनी लापरवाही की वजह से, उन बसेस को भी रीएक्टिवेट करने का हमने एक प्रोसेस स्टार्ट किया है। कोशिश कर रहे हैं कि वो तकरीबन 28 से 30 बसेस ऐसी हैं जो कि रनिंग कंडीशन में कुछ एक्सपेंडिचर के साथ आ सकती हैं। नाजिम जोकियो कत्ल केस में नामजद मुलजिम सलीम हालार की अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। मलीर कोर्ट ने 3 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने और 22 नवंबर को दोबारा पेश होने का हुक्म दिया है। मुलजिम सलीम हालार ने सिंध हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत करार रखी थी। कराची की मलीर कोर्ट ने मुलजिम सलीम हालार को 3 दिन में मातहत अदालत से रुजू करने की हिदायत की थी। नाजिम जोकियो के कत्ल में मुलजिम के खिलाफ मेमनगोट थाने में मुकदमा दर्ज है। भारत में कोई पाकिस्तान की तारीफ नहीं कर सकता और अगर कोई तारीफ कर दे तो कहा जाता है कि इसे पाकिस्तान भेज दो। भारतीय सहाफ़ी ने सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। महावीर रावत ने कहा कि भारत में हुकूमती सतह पर पाकिस्तान से नफरत को बढ़ावा दिया जाता है। ये भी कहा कि किसी चैनल से वाबस्ता नहीं, इसीलिए खुलकर बात कर रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए कौमी टीम स्क्वाड ढाका पहुंच गया। कौन बनेगा T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन, फैसला कल हो जाएगा। फाइनल मार्के में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीम्स टकराएंगी। दोनों टीम्स पहली बार टाइटल जीतने के लिए बेकरार हैं। और T20 वर्ल्ड कप का टाइटल सिर्फ एक फतह की दूरी पर है। दोनों टीम्स को भरोसा है अपने मैच विनर खिलाड़ियों पर। वर्ल्ड कप फाइनल के लिए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स में कौन कौन से मैच विनर खिलाड़ी हैं